ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਵਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀਵਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 7 ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ 8ਵਾਂ ਪਾਰਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਫਸਟ ਹੈ, ਰਿਟੇਲਰ ਬਾਇਜ਼ ਅ ਰੇਡੀਓ। ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਬਾਏ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਏ ਕੀਤਾ? 225 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਜ਼ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਰ ₹15। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ 225 ਦਾ, 15 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 225 ਪਲੱਸ 15, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗੀ 240। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਗੀ 240। ਹੀ ਸੈਲਸ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਫੋਰ 300, ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਤਾ ਇਸਨੂੰ? 300 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ 300 ਮਾਈਨਸ 240, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 60 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਟੇਲਰ ਇਜ਼। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਏ ਸੀਪੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਟੂ 100। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ? 4 ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 25। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 25%, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸੈਲ ਵਾਚ ਐਟ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 20%। ਪੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਚ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ? 20% ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ 100। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 20% ਦਾ। 20% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ? 120। ਸ਼ੀ ਬੌਟ ਇਟ ਐਟ 10% ਲੈਸ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 10% ਲੈਸ ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 100 ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ? ਐਕਚੁਅਲ ਸੀਪੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 90 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ 10% ਲੈਸ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੋਲਡ ਇਟ ਐਟ 30 ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਸੋਲਡ ਇਟ ਐਟ 30 ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈਸ, ਉਸਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦਾ ਵੇਚਤਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸ਼ੀ ਗੇਨ 20%। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵਾਚ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 20% ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 90। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ 'ਤੇ 20% ਦਾ ਗੇਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 90 ਦਾ ਆਪਾਂ 20% ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 18 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 90 ਪਲੱਸ 18, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ? 108 ਰੁਪਏ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਸਦੀ ਸੀਪੀ 90 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 108 ਰੁਪਏ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੋਲਡ ਇਟ ਐਟ 30 ਰੁਪੀਜ਼ ਲੈਸ। ਉਸਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? 12 ਦਾ। 12 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 12 ਨੂੰ 30 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30/12, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨਾ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਸੀ? 100। 30/12 × 100।
ठीक है। तो देखो हुण ये गया 10 ते ये गया 4 ते गया 25 ते, तो CP कितनी आ गई 250। तो वॉच की कॉस्ट प्राइस अपने को आ गई 250 रुपये, जो कि है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 8 बकेट्स एंड 5 मग्स इज, कॉस्ट की देती है ये अपन 8 बकेट्स की ते 5 मग्स की। 8 बकेट्स प्लस 5 मग्स अपन कितनी कॉस्ट दी हुई है 92 रुपये। कॉस्ट ऑफ 5 बकेट्स प्लस 8 मग्स कितनी दी हुई है 77 रुपीज़। तो अपन एक कादी फाइंड करनी है 2 मग्स ते 3 बकेट्स की। ठीक है, हुण देखो आप किवें फाइंड करांगे ये, इस विच जिवें आपां इक्वेशन सॉल्व करते हुंदे आ आपां उसे तरह बकेट ते मग की वैल्यू फाइंड करांगे। तो देखो हुण जे आपां इस नूं 8 नाल मल्टीप्लाई कर दईए तो इस नूं 5 नाल मल्टीप्लाई कर दईए तो की होएगा 40B प्लस 25M इज इक्वल टू 460। 40B प्लस 64M इज इक्वल टू 616। तो देखो इन्हों आप माइनस करांगे, आ दोने कट्टे गए माइनस माइनस, तो ये अपने को कितना आ गया -39M, तो ये अपने को आ गया 156 माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसल हो जाएंगे। तो देखो M की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 156/39, तो यह कैंसल हो जाएगा 4 ते, मतलब अपने को मग की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, हुण आप मग की वैल्यू पुट करके इस बकेट की वैल्यू कढ़ सकते हैं। किस तरह कढ़ांगे देखो 8B प्लस 5M हो जाएगा, 5M M की वैल्यू है 4, तो इतने आ जाएगा V इज इक्वल टू 92। 8B इज इक्वल टू इतने कितना आ गया 72। ठीक है, तो B की वैल्यू अपने को आ गई 9। तो अपने को M ते B की वैल्यू आ गई, तो हुण आपां इहदे विच पुट करके इसकी वैल्यू कढ़ सकते हैं। देखो 2 × 4 प्लस 3 × 9 इज इक्वल टू कितना आ गया देखो 8 प्लस 27, ये कितना आ गया 35 रुपये। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 35 रुपीज़। नेक्स्ट है इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, जे कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% प्रॉफिट है, तो जे आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट सेल प्राइस से पता करनी होवे तो वो कितनी होएगी। तो हुण देखो जे अपने को प्रॉफिट 20% है ऑन कॉस्ट प्राइस, जे अपने को कॉस्ट प्राइस 100 है, तो इसका मतलब अपने को प्रॉफिट जे है 20% कादे ते कॉस्ट प्राइस ते, तो सैलिंग प्राइस कितनी आएगी 120 रुपये। ठीक है, हुण जे अपने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना होवे सेल प्राइस से, देखो सेल प्राइस कितनी है 120 रुपये, तो आप करांगे 20/120 × 100। ठीक है, तो ये अपने को आ गया 6, तो ये अपने को आ गया 3, तो आ गया 50। 50/3 आ गया, तो इसनों जो आप सहीयां दे विच लिखांगे तो ये कितना आएगा 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन 16 सही 2/3%। नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। कहते जे 36 बुक्स की जो कॉस्ट प्राइस है वो जे 30 बुक्स की सैलिंग प्राइस के इक्वल है, तो आपने गेन परसेंटेज दसना है। हुण देखो आप एज्यूम कर लेने कि अपने को एक बुक की कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 रुपये। ठीक है, हुण देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सैलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, मतलब जे आप 36 बुक्स की कॉस्ट प्राइस कढ़िए तो वो 36 रुपये आ गई। तो इन्होंने की किया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सैलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। देखो हुण जब 30 बुक्स लैके चलिए तो 30 बुक्स की कॉस्ट प्राइस कितनी होएगी 30 रुपीज़, बट सैलिंग प्राइस कितनी होएगी 30 बुक्स की, इन्होंने किया जिन्नी 36 बुक्स की कॉस्ट प्राइस है, मतलब 36 रुपये। ठीक है, तो हुण देखो हुण आप ईजिली कढ़ सकते हैं कि गेन परसेंटेज कितना होएगा। तो देखो सैलिंग प्राइस है कि 36 रुपये, कॉस्ट प्राइस है 30 रुपये, तो देखो 36 माइनस 30 कितना आ गया 6। किदे ते कढ़दे हुंदे आ CP ते कढ़दे हुंदे आ, CP ते कढ़ना इस तरह ही आएगा।
गेन परसेंटेज आ जाएगी। तो देखो 0 ਨਾਲ 0 कैंसल होगी, 3 ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤੇ ਗਿਆ 6, तो ये आ गया 20%। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन 20%। नेक्स्ट है राम सोल्ड 2 horses at the same price. In one he gets a profit of 10% and in other he gets a loss of 10%. Then Ram gets, देखो की है राम ने 2 horses ਵੇਚੇ सेम प्राइस ਤੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 10% प्रॉफिट ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% लॉस होया। ਆਪਾਂ ਨੇ ओवरऑल ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ लॉस ਹੋਇਆ प्रॉफिट ਹੋਇਆ। देखो एक गल तुसीं ध्यान दे विच रखनी है, जे 2 चीज़ां सेम प्राइस से सोल्ड कीतियां ते दोनों ते की है सेम नंबर ऑफ प्रॉफिट ते लॉस होया है, ठीक है। हुण इहदे विच देखो 10% पहला प्रॉफिट होया, फिर 10% लॉस होया, ठीक है। जे सेम होण आह वाली चीज़ 10% ते एक होवे प्रॉफिट ते एक होवे लॉस ते दोने सेम प्राइस ते बेचे होण तो उस ते हमेशा की होएगा, लॉस ही होएगा, ठीक है। ये गल तुसीं पक्का ध्यान दे विच रख लैनी है कि हमेशा लॉस ही होएगा। तो हुण देखो ये भी अपने कोल ऑप्शन कट्टी गई, ये भी कट्टी गई, तो इसका मतलब 3 या 1 दे विचों ऑप्शन आएगी। हुण देखो आपां किवें कैलकुलेट करदे हां, उसदा अपने कोल की फॉर्मूला हुंदा है, जिन्ना अपने कोल प्रॉफिट या लॉस होया है, मतलब अपने कोल 10 प्रॉफिट या लॉस होया है, 10 × 10/100, ठीक है। ये अपने को आ जाती है लॉस परसेंट। 10 प्रॉफिट होया सी, 10 लॉस होया सी, ठीक है। तो इसनों आपां 100 दे नाल डिवाइड कर देने आ, तो ये आ गया 1%, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1% लॉस, जो कि है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 for a rupee। जो फ्रूट सैलर है उसने 1 रुपये का की खरीदे, 2 लैमन खरीदे, ठीक है। या तुसी ये लिख सकते हो कि 2 लैमन खरीदे 1 रुपये दे, ठीक है। तो 1 लैमन की अपने कोल कितनी आ गई वैल्यू 1/2 एंड सेल्स दैम एट 5 or 3 rupees। 5 बेचते, देखो ये अपने को होगी कोस्ट प्राइस दा, ये अपने को होगी सैलिंग प्राइस। 5 लैमन वेचते 3 रुपये दे, तो 1 लैमन किन्ने दा हो गया 3/5 दा, ठीक है। तो देखो ये आ गया 0.5 तो ये आ गया 0.6। इसका मतलब जे अपने को सैलिंग प्राइस ज़्यादा है कोस्ट प्राइस नालों, इसका मतलब उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना होया 0.6 माइनस 0.5, ये आ गया 0.1, ठीक है। उसमें प्रॉफिट होया 0.1 का। तब इन्होंने की किया है हिज प्रॉफिट परसेंटेजेस, आपने प्रॉफिट परसेंट कढ़नी है, तो प्रॉफिट बाय सीपी कितना है 0.5 × 100, ठीक है। तो पॉइंट नाल पॉइंट देखो काट गया, तो ये अपने को आ गया 20%। तो इसका आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन 20%। नेक्स्ट है रमेश सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 30%। रमेश ने एक बुक नू सॉल्व करता 30% लॉस से। देखो हुण आपां एज्यूम कर लेने कि अपने कोल सीपी है 100, ठीक है। इसका मतलब एसपी होगी 70, 30% लॉस से उसने सोल्व करता। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹140 मोर, जे उसने 140 ज़्यादा का बेचा हुंदा तो उसनू प्रॉफिट कितना हुंदा 40%। तो आपां ने दसना है कि कोस्ट प्राइस कितनी है बुक की। हुण देखो जिवें मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी कि जदों आपां अज्यूम करके चलदे हां तो आपां नूं जो रूपीज़ दे विच वैल्यू दित्ती हुंदी आपां ओनू लैके नहीं चलना हुंदा, आपां हमेशा परसेंटेज नूं लैके चलना हुंदा है। तो 40% का प्रॉफिट दिखाना है, तो 40% का प्रॉफिट हुण किवें होएगा इसनूं, जे ओह 140 की बुक बेचेगा, ठीक है। तो इन्होंने की किया जे वो इन्ने दी ज़्यादा बेचदा, मतलब इन्हां दे विच डिफरेंस कितना होना चाहिए 140, बट ये डिफरेंस कितना है 70 का, ठीक है। 70 का डिफरेंस आया ये, इसनूं आपां 140 दे इक्वल करना है, तो 70 की वैल्यू आ गई 140, 1 की वैल्यू आ गई 140/70, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 2 तो 100 की वैल्यू
ਆਪਾਂ ਨੇ CP फाइंड करनी है तो आप 100 लैके चलांगे 100 की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 100 200 तो कोस्ट प्राइस कितना सी बुक का 200 रुपये तो इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन 200 रुपीज़। नेक्स्ट है ए इन्वेस्ट 64,000 इन अ बिजनेस। ए ने 64,000 एक बिजनेस दे विच इन्वेस्ट किया। आफ्टर फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंड हिम विद ₹48,000। देखो की है ए ने एक बिजनेस दे विच इन्वेस्ट किया 64,000 नाल, ठीक है। कुछ महीनों बाद बी ने ज्वाइन किया 48,000 नाल। उस तो बाद की कह रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड बिटवीन दैम इन द रेशो 2:1 आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन। कहते जो ईयर के एंड से देखा तो जो प्रॉफिट से उन्होंने किमें डिवाइड किया गया 2:1 की फॉर्म के कहते किन्ने महीनों बाद बी ने ज्वाइन किया। तो देखो हुण ए ने तो 12 के 12 महीने ज्वाइन कर रखा, ठीक है। बी का अपन पता नहीं कि उसने किन्नी देर ज्वाइन किया किन्ने मंथ्स ज्वाइन किया, बट उसने अपन रुपीज़ पता है कि उसने 48,000 रुपये किन्ने महीने के लिए अपन नहीं पता, तो आप इत्थे कर लेने एक्सज्यूम, ठीक है। इसमें आप कैंसल करते हैं। देखो 3 0 नाल 3 0 कैंसल हो गई, इस दे नाल इत्थे आ गया 4, देखो इस दे नाल 64 दे नाल इत्थे आ गया 16, तो यह बन गया 16:x। बनना की चाहिए सी 2:1, ठीक है। हुण एक कदों 2:1 बनेगा जो इत्थे 8 होएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अपने को आ गई 8, मतलब इसने 8 महीने ज्वाइन करी रखा। बट इन्होंने की पूछे आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, बी ने किन्ने महीनों बाद ज्वाइन किया, बी ने किन्ने महीनों बाद ज्वाइन किया 4 महीनों बाद, 12 - 8 4 महीनों बाद बी ने ज्वाइन किया। ये तुसीं ध्यान नाल बहुत जने ये 8 आंसर लगा के आएंगे, बट तुसीं 8 आंसर नहीं लगाना, तुसीं ध्यान नाल देखना है कि उन्होंने ये पूछा है कि बी ने किन्ने महीनों बाद ज्वाइन किया। तो इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन 4। नेक्स्ट है इफ द रेशो ऑफ द कोस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 5:6 द गेन परसेंटेज इज। देखो हुण आपां नूं कोस्ट प्राइस ते सैलिंग प्राइस की रेशो दी हुई है 5:6। हुण आपां नूं जिवें कि देखण च पता लग रहा है कि सैलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होएगा, ठीक है। इन्होंने दिता भी होया कि अपने गेन परसेंटेज फाइंड करनी है, तो आप एज्यूम कर लें कि अपने को कोस्ट प्राइस है 5 तो सैलिंग प्राइस है 6, तो अपने को देखो प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट अपने को आ गया 1, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, देखो 1/5 × 100, तो ये आ गया 20%। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन 20%। नेक्स्ट है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ अ शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% ईच ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ 80 रुपीज़। देखो 8 रुपये है MRP, तो शॉपकीपर ने अलाउ किया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5%। हुण सक्सेसिव डिस्काउंट का अपने को फॉर्मूला हुंदा की हुंदा, जे अपने को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट होन तो A + B मतलब फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकंड डिस्काउंट माइनस AB/100, ठीक है। तो ये अपने को की आ जाता है, ये अपने को आ जाता है ओवरऑल डिस्काउंट। हुण देखो 5 पहला सी 5 फिर हो गया माइनस 5 × 5 25/100 आ गया, तो ये आ गया 1/4, तो 10 - 1/4, ठीक है। ये कितना आ गया 39/4%। मतलब ओवरऑल डिस्काउंट कितना होया 39/4%। हुण MRP सी 80%, तो डिस्काउंट कितना होया 80 × 39/4/100, ठीक है। तो देखो इस नाल ये कैंसल हो गया, इस दे नाल ये कैंसल हो गया, तो 39/5 आ गया। तो 39/5 नूं जे आपां पॉइंट्स की फॉर्म दे विच लिखिए तो ये कितना आ गया 7.8 आ गया, ठीक है।
7.8 आ गया। तो देखो अपने कोल ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MRP ਮਾਈਨਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, MRP ਹੈ 80, 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7.8 ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 72.2, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 4th ऑप्शन। ठीक है, तो ये अपने को आ गई सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर बॉट 80 किलोग्राम ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ ₹13.50 पर केजी। शॉपकीपर ने की किया, जो 80 किलो शुगर खरीदी वो खरीदी 13.50 पर किलो दी। ठीक है, तो उसनों मिक्स किहदे नाल कीता, जो 120 किलो ने शुगर खरीदी 16 रुपए पर केजी के हिसाब नाल। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ 20%, ਉਸਨੇ 20% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਟ ਸੈਲ ਦ ਮਿਕਸਚਰ ਐਟ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਈ 80 ਕਿਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ 13.50 ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। 120 ਕਿਲੋ ਲਈ 16 ਰੁਪਏ ਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, तो हम देखो इसनों आप जो कैलकुलेट करांगे तो 80 × 13.50 प्लस 120 × 16, तो देखो ये आ गया 1080 प्लस जो आप इन्हों मल्टीप्लाई करांगे तो ये आएगा 1920। ठीक है, तो इसनों जो आप सॉल्व करांगे तो ये आ गया 3000। ठीक है, मतलब वो टोटल खर्चा होया 3000। 3000 के उसनों किन्ने किलो शुगर मिल गई, देखो 80 किलो आ सी, 120 किलो आ होगी, 200 किलो शुगर होगी। 200 किलो का प्राइस कितनी होगी 3000। 1 किलो की कितनी होगी 3000 बाय 200। ठीक है, 15 रुपये होगी 1 किलो की। कोस्ट प्राइस अपने को आ गई 15। ठीक है, प्रॉफिट कितना दिता होया 20%। तो किन्ने की बेचनी पेगी, हुण उन्होंने आप किवें फाइंड करांगे, आपने सैलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो देखो सैलिंग प्राइस होएगी 15 प्लस 15 का 20%। तो 15 प्लस 3 अपने को कितना आ गया 18। मतलब जे वो 18 रुपए पर केजी के हिसाब नाल शुगर बेचे तो उसनों 20% का प्रॉफिट होएगा। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन ₹18 पर केजी। नेक्स्ट है, अ ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स। एक ट्रेडमैन मार्क करता है अपने गुड्स नू 30% मोर दैन द कोस्ट प्राइस। देखो जो आप एज्यूम करिए कि अपने को CP है 100, तो इसका मतलब की है कि वह किन्ने दी MRP लिख दे, उससे 30% उपर दी, मतलब 130 रुपये MRP लिखेगा। जे वो कहते इफ ही अलाउज डिस्काउंट ऑफ 6/1/4%, मतलब जे वो इन्ना % का डिस्काउंट दे देंदा है तो आपने दसना है कि वो किन्ने % गेन करता है। हुण देखो गेन % दे लई आपां नूं की चाहिए सैलिंग प्राइस। सैलिंग प्राइस का फॉर्मूला अपने कोल की हुंदा है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, हुण देखो मार्केट प्राइस अपने कोल आ गई 130, डिस्काउंट देखो अपने कोल कितना है, ये आ गया देखो 25/4%। ठीक है, किहदे ते 25/4%, मार्केट प्राइस से हुंदा डिस्काउंट। देखो 130 का 25/4%। ठीक है, तो ये आह कैंसल हो गया। देखो ये गया 5 ते ये गया 8 ते, तो ये हो गया 130 माइनस 65/8। तो देखो इसमें सॉल्व करो तो ये कितना आएगा, ये आएगा 300, ये आएगा 975/8। तो हुण जे आपां इहनूं सईयां दे विच लिखीए तो देखो ये कितना आ गया 1 2 1 7/8। ये अपने को आ गई सैलिंग प्राइस। ठीक है, हुण अपने को देखो सैलिंग प्राइस आ गई 121 सही 7/8। ठीक है, हुण अपने को कोस्ट प्राइस सी 100, सैलिंग प्राइस आ गई 121 सही 7/8, तो अपने को प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट अपने को आ गया
21 सही 7/8, मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 21 ਸਹੀ 7/8 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CP 100 ਸੀ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ 100 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 21 ਸਹੀ 7/8%। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ 21 ਸਹੀ 7/8%। ਨੈਕਸਟ ਹੈ A sells a bicycle to B at a profit of 20%। ठीक है, ਹੁਣ देखो ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ A ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ A 100। ठीक है, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 120, ਕਿ ਇਸਨੇ 120 ਤੇ B ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ B ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 120 ਬਣੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ A ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਉਨੇ ਦਾ ਹੀ B ਨੇ ਖਰੀਦੇ। B sells it to C at a profit of 25%। ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ B ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 120 ਪਲਸ 120 ਦਾ 25%। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਗੀ 150। ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ C ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 150, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾ B ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਉਨੇ ਦਾ ਹੀ C ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਫ C pays, C ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ 225, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿ 150 ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ 150 ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ 100/150। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ 225, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 100/150 ਇੰਟੂ 225। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 3, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 75। ਤਾਂ ਇਹ 75 ਇੰਟੂ 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 150। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब कोस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर ए की है 150 रुपये। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन ₹150। ठीक है, तो इस नाल अपना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कंप्लीट होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। हुण तुसीं कोई भी मैथ की बुक लैके उस इन्हां क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। जेकर तुहानूं इन्हां क्वेश्चन के विच कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो तुसीं मैनूं कमेंट्स के पूछ सकते हो, या तुसीं मैनूं मेल भी कर सकते हो। ईमेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दित्ती हुई है। तो इस वीडियो में इन्ना ही। हुण आपां मिलदे हां नैक्सट वीडियो विच। नैक्सट वीडियो दे विच आपां इंटरस्ट नाल रिलेटेड क्वेश्चनस करांगे। तो जेकर तुहानूं ये वीडियोस पसंद आन तो इन्हां लाइक ते शेयर करना ना भुल्लिओ। तो जेकर तुसीं साडे चैनल दी स्टडी मीट नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं कीता तो सबसक्राइब करो अते नाल ही एक बैल आइकन है उसनूं जरूर दबाओ ताकि तुहानूं लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस मिलदियां रहन। थैंक यू।